So hello, I welcome you all and very sweet good morning to all of my dear students. This is once again your educator Anup Kumar Singh and today we are going to complete the class 8 the remaining portion और उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे बस last topic बचा हुआ है that is the fundamental rights and some more topics, right? So we will finish this and after that we will move on the next class. So this is a kind of a small information about me. If you want to mail me, if you want to message me, you can message the UPSC and the PCS aspirant clear pre in 2017 and WBCS in 2017 as well. So without using a single second, let's start today's class. So in our previous session we have already learned about the fundamental rights, right? पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये सब बारे में हम पढ़ चुके थे. वो क्या है, क्यों लाए गए थे, वो हम लोग समझ गए थे, जान चुके थे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल गोइंग टू लर्न दैट व्हाट आर दोज फंडामेंटल राइट्स, है ना, वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में वी विल लर्न एंड वी विल ट्राई टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो some fundamental rights. Now let's see some fundamental rights. And so number one fundamental rights is the right to equality, right? यहाँ देखिए right to equality. Now this right to equality is mentioned in our Indian constitution under the article number 14 to 18. That's why I have written here 14 to 18, right? You can see यानी आर्टिकल 14 से 18 में हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, जो बात करता है समानता की, यानी कि समानता का हक, समानता का अधिकार, राइट. राइट टू इक्वालिटी टॉक्स अबाउट द the all people are equal and it falls under the article number 14 to 18. It means every individual from the India is are equal. Okay, so now let us understood that what is this mean. Now according to this, all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. यानी कानून के नज़र में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हर कोई बराबर है, एवरी वन इज इक्वल और एवरी वन हैज़ द राइट. सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें ये बोलता है दैट एवरी वन इज इक्वल एंड एवरी वन हैज़ द राइट टू गेट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. यानी कानून के यानी कानून एक ऑथोराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपको, आपका अगर हक छीना जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, तो आपको वो बचाएगी, क्योंकि कानून के नज़र में एवरी वन इज राइट, राइट. देयर इज नथिंग लाइक द हिंदू एंड द मुस्लिम एंड अदर एंड बिग एंड सो ऑन. नो वन इज लाइक दैट, एवरी वन इज इक्वल, है ना, हर किसी को हक है. इट्स अप टू यू, आप ब्लू कलर की टी शर्ट पहनो, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले फुटबॉल, एवरी वन इज इक्वल. सो आर्टिकल 14 to 18 states that all persons are equal before the law, and this means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. Now the second point, it also very very important, that it also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex, right? यानी whenever I say about the equality, whenever I talk about the equality, it means समानता, चाहे वो किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी फील्ड में हो. सो आपको राइट टू इक्वालिटी ये भी हक देता है कि हर इंसान इक्वल है और किसी के साथ कोई भी भेदभाव या कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता, चाहे इन द नेम ऑफ द रिलीजियन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, पहनावे के नाम पर, कल्चर के नाम पर, या फिर उसके लिंग के नाम पर. यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, यू कांट डिस्क्रिमिनेट between the rich and the poor, everyone is equal, right? So this means the right to equality, and this is the first fundamental right. Now the third point, every person has access to public places like playground, hotels, shops, etc. इसी की वजह से देखो बेस्ट एग्जांपल है इस ये इक्वालिटी क्या देता है. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज दैट हर कोई इक्वल है और वो कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी जा सकता है. She can go in the playground, she can go in the restaurants, she can go in the big hotels, motels, she can go in the pubs, right? He or she can go nearby shops or maybe in the departmental stores, anywhere. यानी आप बगल वाले दुकान पे जाइए या फिर आप बड़े राशन शॉप पे जाइए, आप सुपरमार्केट से सब्जी लो या फिर आप रोड के किनारे जो थोक में बेचते हैं, खुदरा में बेचते हैं, उनसे सब्जी लीजिए, आप कुछ भी खेलिए, आप इक्वल है, क्योंकि ये आपका हक है, राइट टू इक्वालिटी. एक ही दुकान में, सुपरमार्केट में आप भी जा सकते हो सकता है कल मैं वहां भी चला जाऊं, है ना. यू लव द क्रिकेट, आप एक क्रिकेट एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, तो इट मीन्स आई ऑल्सो हैव द राइट टू प्ले ऑन द सेम फील्ड, टू प्ले द सेम गेम, बिकॉज आर्टिकल 14 to 18 gives us these fundamental rights. Now the next point under the fundamental rights is the right to freedom, which falls under the article 19 to 22. See here, right to freedom, article number 19 to 22.
So what is this? Other than the rights to life and personal liberty, the constitution gives us the following freedoms, है ना? Right, other than the rights to life, right to life आता है आपका आर्टिकल 21 में, right? If you don't know, just I just want you to say that the article 21 right to life, यानी जीने का हक, जीने का अधिकार, आज़ादी के साथ जीने का अधिकार. देखो, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड पर्सनल लिबर्टी. ओके, सो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम गिव्स मीन्स आज़ादी के साथ जीने का हक, चाहे वो पर्सनल लाइफ में जीने का हो, प्रोफेशनल लाइफ में जीने का हो, है ना, कहीं और जीने का हो. इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट टू फ्रीडम. आज़ादी के साथ जीजिए, आज़ादी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करो. यू कैन लिव, राइट, यू कैन सर्वाइव एंड विथ योर पर्सनल फ्रीडम, अपनी पर्सनल आज़ादी के साथ. इट डजेंट मीन कि अगर आपको चिकन पसंद है तो मैं आपको ऑप्रेस्ट कर सकता हूँ कि नो यू हैव टू ईट फिश, आप चिकन नहीं खा सकते, आप सिर्फ फिश खाओ. क्यों? क्योंकि आपके पास हक है, आप बोल सकते हो नो दैट्स इट्स माई personal right, this is right to freedom and I can eat the chicken, right? Now the second point is the freedom of speech and expression. So now this article falls under the article number 19. It means the constitution of India grants you the rights to freedom of speech and expression. इसी वजह से you know we are free to say anything. इसी वजह से इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान आपको हक दे रही है कि आप स्पीच दे, बोलने की आज़ादी और साथ साथ खुद को व्यक्त करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी. अंडरस्टूड? इट मीन्स एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, प्रिस्ट हो, या फिर एक शमशान घाट का कुछ जलाने वाला कोई एक नीच या फिर जो लोअर कास्ट का ही क्यों ना, डजेंट मैटर. इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नथिंग लाइक द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट एंड दे हैव द राइट टू गिव द स्पीच, दे हैव द राइट टू गिव अस द एक्सप्रेशन, यानी खुद को अभिव्यक्त करने का, खुद को बोलने का हक आपके पास है. क्यों? बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल राइट्स. इसी वजह से आप देखते होंगे ना, फिल्म्स में अलग अलग डायलॉग इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना. आपके मॉम डैड आपको कभी कभी गुस्से में कुछ और बोल देते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं, और आप भी कई कई बार ये बोल देते हो कि नो मैम, कि मम्मी आप मुझसे प्यार करते ही नहीं है, जबकि यू नो वेरी वेल दैट you belong to his son, you belong to his or her daughter. So you know they use certain things because the constitution gives us the right of freedom of speech and expression. Now freedom to assemble peacefully without arms. You might have seen that you know whenever the Modi or maybe any other leader, Lalu Prasad, Kejriwal, you know, they used to assemble a kind of a rally, a kind of a big gathering, a kind of a big meeting. तो आपके पास हक है कि आप भी एक अपने गांव में, घर में या कहीं भी आप कहीं सभा बुला सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज योर द राइट टू arrange the assemble, arrange the meeting, arrange the gathering peacefully without arms, right? यानी बिना हथियार के आप एक छोटी सी सभा, एक छोटी सी मीटिंग आप बुला सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं. इसी वजह से देखना मे बी इन द प्लेइंग ग्राउंड बच्चे खेलते खेलते शाम को यू नो बैठ के गोल में एक झुंड में बैठ जाते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनका राइट है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. Freedom to form association and unions. You might have seen you know that the big industries, the big factories, वहाँ पे students union होते हैं, sorry मजदूर unions होते हैं, कॉलेज में students union होते हैं, गांव देहात में छोटे छोटे यूनियन बनाए जाती है, संघ बनाए जाते हैं जो अपनी आवाज़ को आगे रखते हैं. तो वो क्यों रखते हैं? बिकॉज राइट टू फ्रीडम के तहत दे हैव द राइट टू फॉर्म अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, काइंड ऑफ एसोसिएशन, काइंड ऑफ अ यूनियंस. For an example, in our school we have the different unions, different house, Shakti house, you know, Pratibha house. किसी स्कूल में शास्त्री हाउस होता है, रेड हाउस होता है, ब्लू हाउस होता है. वो इसलिए होता है बिकॉज they are they are abide by the constitution of India to form association and unions. Now freedom to move freely throughout the country. No one has the authority to stop you. अगर आप बिहार से हो एंड इफ़ यू वांट टू गो इन द केरला, किसी के पास हक नहीं है कि कोई आपको रोक देगा. इफ़ यू आर लिविंग इन द मुंबई एंड इफ़ यू वांट टू गो टू विजिट द गोवा, देन इट मीन्स यू आर अ legally authorized to move anywhere because right to freedom states you, grants you to move anywhere. So this is the basic fundamental rights. That's why you know we are free to go in the Odisha, to go in the Bihar, to go in the Goa, go in the Manipur, Arunachal, anywhere, because this is the freedom to move freely throughout the country. Now freedom to reside and settle in any part of the country, right? कई बार हम देखते हैं कि इन बिहार इट जस्ट लाइक इन बिहार इट इज़ द कॉमन माइंड सेट कि इन बिहार ओनली द बिहारी पीपल विल स्टे.
बट ऐसा है क्या? इफ यू जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व, इन बिहार वी हैव अ पंजाबी, we have a buddhist, right? We have a bengali also. Similarly in bihar, in bengal we have a bihari, we have a marwari. महाराष्ट्र में भी कई अलग अलग धर्म के लोग हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उनके पास हक है कि वो आज़ादी के साथ और अपनी लिबर्टी के साथ, पर्सनल लिबर्टी के साथ भारत के किसी भी हिस्से में, इफ़ दे आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द इंडिया, देन दे आर ऑथराइज टू लिव एनी वेयर ऑफ द इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो अरुणाचल हो, केरला हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और मे बी दिल्ली क्यों ना हो। Freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade and business, right? It means, for an example, maybe let me give you the example. आप सबके कुछ फादर कुछ मे बी आर दे आर इन द गवर्नमेंट सर्विस, कुछ बैंकर्स होंगे, सम ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी। तो कुछ के पापा छोटे मोटे दुकान चलाते होंगे, तो किसी के पापा के पास कोई बड़ी सी शॉप होगी, लाइक बिजनेस होगा, राइट? Like for example, my father is having a big business, right? They are having the wood and timber depot. So similarly, why they are having different kind of things? Why they are not having the same things? Because this is their right, this is their freedom to do whatever they want to run their family. अपने घर को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी काम, चाहे वो किसान का काम हो, गड्ढे खोदने का काम हो, पान की दुकान चलाने का काम हो, रेलवे में जॉब करने की बात हो, एमबीए करने की बात हो, मल्टी एंटरप्रेन्योर बनने की बात हो, दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज द राइट टू फ्रीडम गिव्स देम द राइट टू डू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, any occupation and any business, right? So now let's see the next fundamental rights, that is the right to freedom of religion. यानी आज़ादी के साथ अपने धर्म और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, दे कैन फॉलो, दे कैन डू, राइट? That's why it is said that India is the big country, vast country, and here we are having the different culture and religion. क्यों? Because we are united by these fundamental rights, which gives us the right, which gives us the authorized to practice any kind of religion. चाहे आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, राइट? मठ में जाइए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जाइए, एनीवेयर. इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम द इंडिया हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन. एंड सेम थिंग मैंने यहाँ मेंशन किया है, दैट इज द रिलीजियन फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन. सी, all citizens. Whenever I say about the all citizens, it means, sorry, whenever where is the cursor? Whenever I use all citizens, it means the entire Indians, चाहे वो मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, वेस्ट बंगाल का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, सबके पास हक है कि वो अपने धर्म को पालन करे, अपने धर्म का जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसके कायदे से पालन करे. कोई किसी को हक नहीं है. फॉर एग्जांपल देख लो, बिहार में छठ पूजा वर्ल्ड फेमस है, राइट? वहाँ होती है. सिमिलरली बंगाल में छोटे पैमाने पे होती है. तो गोवा में शायद छठ पूजा जो बिहारी समुदाय के लोग होंगे वो करते होंगे. महाराष्ट्रियन के लिए, मुंबई के लिए, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल फॉर इन अ वेरी बिग मैनर. बट इन आवर साइड वी डोंट सेलिब्रेट. क्यों? बिकॉज वी हैव द राइट्स टू मेंटेन आवर ओन फ्रीडम, टू डू आवर ओन कल्चर, टू डू आवर प्रैक्टिस आवर ओन रिचुअल्स. Now every person has the right to practice, profess, propagate their religions of their choice. जो मैंने बताया, सबके पास हक है कि अपने रिलीजन को चाहे वो प्रोफेस करे, उसका पालन करे, उसको प्रोपोगेट करे, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, उसके लिए भजन गाए, कीर्तन गाए, मीटिंग करे, है ना? उसके लिए दे कैन ऑर्गेनाइज द मीटिंग. इसी वजह से देखना अलग अलग स्थानों पे कभी हवन होता है, यज्ञ होता है, कभी कहीं जलसे लगते हैं. वो इसलिए लगते हैं बिकॉज दिस इज देयर फंडामेंटल rights, that is right to freedom of religion, which falls under the article 25 to 28. Now the next article, that is the next fundamental rights, that is the right against exploitation. It falls under the article 23 to 26. Now exploitation, what does it mean by exploitation? Exploitation का मतलब होता है शोषण करना. शोषण करने का मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ. शोषण करने का मतलब हुआ किसी चीज की कमजोरी जानकर मैं उसका फायदा उठाऊंगा. अगर आप में कमजोरी है तो मैं क्या करूंगा? आई विल टेक द एडवांटेज. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टू एक्सप्लॉइट मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ. Now why this constitution is important? The thing is that the right against exploitation seeks to protect women, children and the weaker sections of the society from being exploited by others. यानी फॉर एन एग्जाम्पल जो
एक्सप्लोटेशन उनका किया जाता है हमारे सोसाइटी में, नॉट फ्रॉम टूडे, सिंस फ्रॉम द एजेस दोज हु बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शन, जो कमजोर तबके से बिलोंग करते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, उनके साथ बहुत शोषण किया जाता है। कई बार बच्चों को ना चाहते हुए भी मेनी चिल्ड्रेंस आर फोर्स टू डू द चाइल्ड लेबर, उनको मजदूरी का काम, भीख मांगने का काम। तो कई बार वीमेंस आर फोर्स टू डू सच थिंग्स विच दे नेवर वांटेड टू, राइट? दे वांटेड टू डू द professional job, they wanted to go outside, they wanted to wear the that dress of their choice, but they are suppressed by the men, by the higher society, that being a woman आप मंदिर में नहीं जा सकती, being a women आप टी शर्ट नहीं पहन सकती, being a women आपको 7 बजे तक घर के वापस आना है। तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका शोषण हो रहा है। वो लोग आपकी कमजोरी जानकर, उनको पता है कि आपको वीमेन है, आपको डराया जाएगा, एंड यू विल फील काइंड ऑफ अफ्रेड, तो वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं। बट दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स विच फॉल्स अंडर द आर्टिकल नंबर 23 to 26, दैट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो ये इसलिए बनाया गया कि कोई भी किसी को दबा ना सके, कोई भी किसी को शोषण ना कर सके, कोई भी किसी का एडवांटेज ना ले पाए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वीकर सेक्शंस वाले हो, पुअर हो, या फिर चिल्ड्रेन हो। एंड इफ दे आर डूइंग सो, इट्स योर राइट टू रेज योर वॉइस एंड काउंटर देम कि ये मेरा हक है, आप इसे छीन नहीं सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी की तरह देखो, इन दिस कनेक्शन इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इन डेंजरस जॉब। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड अमेंड वन मोर राइट। अमेंड क्या होता है मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। उन्होंने एक और फंडामेंटल राइट्स ऐड किया, दैट बिलो द 14 ईयर्स ऑफ the children, they are not allowed to employ any kind of job, right? And as I said, that many children are employed to do the job, in the, and they are employed in the uh, to do begging, right? टू डू माइनिंग, उनको माइनिंग में ढकेल लिया जाता था, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो यानी एक और नया आया फंडामेंटल राइट्स में, एक्सप्लोटेशन में, डैट 14 साल के नीचे तक कोई भी बच्चे को चाइल्ड लेबर में या फिर किसी दूसरे काम में नहीं कराना है। देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल्स अंडर द आर्टिकल 32 to 35, यानी 32 से 35। 32 से 35 में हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब क्या होता है, कुछ नुस्खे या फिर कुछ उपचार, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गए संवैधानिक उपचार। ये क्या होता है, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, चाहे आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है, चाहे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहा है, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन ले रहा है, राइट, आपका फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी ले रहा है, और मे बी दे आर टेकिंग योर द that is the cultural that is the or maybe they are doing the exploitation, you are authorized to raise your voice, and you can directly go in the courts and you can lodge a bill or you can lodge a case against them. That same thing I have written, that this allows citizen to move the court if they believe, see, if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. हियर स्टेट मीन्स का मतलब हो गया नेशन, यानी नेशन का कुछ भी, अगर सरकार आपका कुछ गलत कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपका पड़ोसी हो, आपके खुद माता पिता हो, आपके घर वाले हो, आपके टीचर, एनीवन, इफ दे आर समथिंग डूइंग आर्बिट्रेरी टूवर्ड्स यू, या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को वो लोग वायलेट कर रहे हैं, छीन रहे हैं, देन यू हैव द राइट टू डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द कोर्ट। एंड दैट्स वाई द कोर्ट, द जुडिशरी सिस्टम is the strongest pillar of our Indian constitution, न्यायपालिका, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, some salient features, and I will teach you more about the judiciary in the next chapter, right? So you have the right, if you are thinking कि आपका कोई सिस्टम के साथ हनन हो रहा है या फिर आपके हक को छीना जा रहा है, आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट्स में। उसको बोला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। According to this, the Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. राइट, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बेसिकली ये इट फॉल्स अंडर द आर्टिकल 29 to 31, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब बी आर अम्बेडकर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, when he implemented and when he framed such kind of constitution, that time he himself belonged to the lower caste, that is the mahar caste. I will tell you when we move ahead, आपको पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे शुरू से वी आर सेइंग दैट माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं,
उनके साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है, राइट? लाइक फॉर एन एग्जांपल, द हायर कास्ट हिंदू कैन नॉट सी द लोअर कास्ट हिंदू, और ही और सी कैन नॉट गो टू हैव अ फूड ऑन द लोअर कास्ट हिंदू, क्योंकि उनमें एक प्रकार का अंतर था और वो अक्सर दबाए जाते थे। तो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बनाया गया, और उसमें ये कहा गया जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो कमजोर तबके के हैं लोग हैं, वो चाहे तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, अपना रिलीजियस सेंटर, अपनी जो उनकी भाषा, जो उनकी धर्म कहती है, फिर वो अपने तरीके से अपना एक स्कूल या फिर कुछ पढ़ाने का तरीका, अपने कल्चर को पढ़ सकते हैं, अपने कल्चर को जान सकते हैं, और साथ साथ अपने तरीके से वो एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी हक है समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलने का, एंड टू फेस द आउटर वर्ल्ड. Just because they are minorities and just because they are the lower caste people, someone doesn't have the right to oppress them, right? इसी वजह से ये बनाया गया cultural and educational right which falls under the article 29 to 31 in order to preserve and develop their own culture. एक और आ गया इसमें, right to primary education, that children in the age group of 6 to 14 have the right to receive free primary education. Now what is primary education? प्राइमरी एजुकेशन को अक्सर बोला जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री एजुकेशन. इट मीन्स दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द class nursery to 5, at least 5 up to the 5 standard, 5वीं क्लास तक, they are authorized to get the एजुकेशन. यानी उनको 6 से 14 साल के बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक, 5 क्लास तक, दे आर ऑथोराइज टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन, ताकि वो अपना नाम, अता, पता और खुद का इंट्रोडक्शन दे पाएँ. तो ये भी जोड़ा गया कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में, यानी पढ़ने का हक, यानी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का हक फ्रॉम द स्टूडेंट हैविंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. और ये अभी दिस लॉ हैव बीन पास्ट ओनली रिसेंटली, 2009 में इसको पास किया गया है, जस्ट हाल फिलहाल. That time in 2009 I was in class 10, right? I was about to give the class 10 examination. उस वक्त ये पास किया गया under the, actually it was first started by, this law was first started by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, but afterwards it was finally passed in the year 2009 according to the 76th Amendment Act, I think. आई विल टेल अबाउट दैट. पर ये जान लो, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार भी है एटलीस्ट 5वीं कक्षा तक, चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14, ताकि वो अपना नाम, अता, पता सब कुछ जान सके. नाउ इसके अलावा एक और चीज है जो हमें जानना है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? टिल नाउ वी हैव लर्न द फंडामेंटल राइट्स, ये जो महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़े. अब हम जानेंगे व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है DPSP. That is the directive principle of state policy. What is this? Let's see. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. यानी फंडामेंटल राइट के साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ व्हाट इज दिस? दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, by the member of the Constituent Assembly, to ensure greater social and economic reform and to serve as guide to the independent Indian state to institute law and policy that help to reduce the poverty of the masses. ये इसलिए रखा गया कि अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर, इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार. यानी अगर कहीं हमने देखा कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है, या फिर इन आवर कंट्री वी नीड टू चेंज आवर इकोनॉमिक सिस्टम, हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारनी है, सामाजिक स्थिति को सुधारनी है, और उसमें कुछ बदलाव लाने हैं ताकि समाज के लोगों का, भारत के गरीब तबके लोगों का सुधार हो सके, उनको आगे आने का मौका मिल सके, उनको हक मिल सके, तो हम इसके ज़रिए वी कैन चेंज एंड वी कैन ब्रिंग दो सिस्टम. इस फ्यूचर, इस पॉलिसी को क्या कहा गया? DPSP और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट policy. It means it ensures to safeguard our economic, social, political and also some different reforms which if the mass of the people are not receiving. अगर भारत की जनता या फिर हमारे देश के लोगों के साथ कुछ पे बदलाव लाने जो उनको नहीं मिलना चाहिए पर नहीं मिल रहा है, उसमें सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है, उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव्स यू द राइट टू do such kind of things. I hope up to this is clear to all of you. Now moving forward, the last topic, that is the fundamental duties. Previously we have learned the fundamental rights. अब हम जानेंगे fundamental duties, यानी हमारे जो
फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? हमें तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हमें मौलिक अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है. इट मीन्स वी हैव टू इट इज़ आवर राइट्स, और हम उसके हमें वो मिलना ही चाहिए. पर अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, तो बदले में हमें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने देश के प्रति, वी शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल, वी शुड ऑल्सो ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, इट्स ऑल्सो आवर ड्यूटी टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर. अगर संविधान हमें राइट्स दे रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी अपने संविधान का पालन करें, संविधान के खिलाफ हम भी लॉयल रहें. वो क्या है, चलो देखते हैं. And these are the basic fundamental duties which is applicable to each and every individual. अगर वो इंडियन है, तो अगर वो भारत में जन्मा है और वो भारतीय है, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स उसके हो गए, पर साथ साथ उसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना अनिवार्य है. व्हाट आर दोज? लेट्स सी. These duties of a citizen were added to the constitution in the 1976. यानी कब ऐड हुआ? in the year 1976. They cannot enforced by law, and some of these duties are, वो क्या है चलो जानते हैं. To abide by the constitution and respect it. द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, संविधान को पालन करना, कानून का पालन करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, एंड ऑल्सो टू रिस्पेक्ट आवर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. यानी जहाँ भी आप नेशनल एंथम देखिए, नेशनल फ्लैग देखिए, उसके सम्मान में, उसके इज्जत में आपको खड़ा होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, और साथ साथ संविधान का पालन करना चाहिए. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स यू दैट रेड लाइट इज ब्लिंकिंग, देन स्टॉप, देन यू मस्ट स्टॉप. रेड लाइट है तो आप उसके आगे मत जाइए. क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन यू द फंडामेंटल राइट्स, नाउ इट्स योर टर्न टू पे द फंडामेंटल ड्यूटी. अंडरस्टूड? यानी अब आपकी बारी है कि फंडामेंटल ड्यूटी के तहत आप संविधान के पालन करो, अपने देश का पालन करो, अपने देश के कानून का पालन करो. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. राइट, यानी जो हमारी भारतीय आज़ादी हुई है, उसमें जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट्स चले हैं, जो आंदोलन चले हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी थिंकिंग है, जो लीडर्स है, उनके सम्मान करनी चाहिए, उनकी विचारधारा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके लिए हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. यानी हम सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, है ना. यानी हमारी जो देश की आज़ादी है, देश की जो एकता है, और देश की जो अखंडता है, दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. देश की आज़ादी, यूनिटी, एकता और अखंडता, इसको बरकरार रखेंगे और कसम खाएंगे, हम कसम खाते हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको तोड़ोगे नहीं किसी हाल में, और आप एक दूसरे से कंधे मिलाकर चलोगे. दैट्स व्हाई वी इन आवर स्कूल, इन ऑल द डिफरेंट स्कूल, वी टेक द प्लेस दैट ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नाउ टेल मी वन थिंग, आर डू यू नो ऑल द इंडियंस? नो. द आंसर इज ए नो. नो, आप हर इंडियंस को तो नहीं जानते, पर आप जानते हो बाय द वर्ड इंडियन कि वो हमारे भाई है. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आपको एक दूसरे के साथ चलना है, देश की आज़ादी का ख्याल रखना है, उसकी यूनिटी का ख्याल रखना है, एंड ऑल्सो टू द that is the integrity, that is the akhndata. Right, now the last topic, that is the last line, uh, to defend the country and render national service when the country, यानी you have to be always ready to defend the country, अपने देश की सुरक्षा के लिए. और जब भी देश की आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो रेलवे सर्विस में ज़रूरत पड़े, जैसे कि अभी आपको देश की ज़रूरत है, देश चाहता है कि आप पढ़ के साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे काम करें, सोसाइटी को सुधारें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे ये ग्रांट करती है, आपसे ये डिमांड करती है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, आप देश की सुरक्षा के लिए नेशनल सर्विस, यानी नेशनल सर्विस हो गया देश की सर्विस, नेशनल सर्विस के लिए आप हमेशा आगे रहोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे, एंड यू विल गिव द फुल 100%. फॉर एन एग्जाम्पल, नाउ अ कंट्री वांट्स मी टू डू माई जॉब, दैट्स वाई आई एम डूइंग माई जॉब. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने ज्ञान आपको दे रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ. उसी तरह आपको भी सीख के यू हैव टू make your nation proud, you have to make your parents proud. आपको पढ़ना है ताकि नेशनल सर्विस में आपका भी कंट्रीब्यूशन हो, because this is your fundamental duty to defend the country and render national service whenever required. So this is the end of our chapter. I hope you understood and you enjoyed today's topic. Stay safe and stay happy, and wish you a very very happy weekend ahead. I'm going to send you some homework. Till then, stay safe and be happy. Thank you so much for attending this session.